curves have applications in various engineering objects. So we need to have knowledge of different types of curves and also their construction methods, how to construct the curves on a drawing. So in engineering curves, the following are the curves. One is conic section curves, involute curves, cycloidal curves, spiral, evolutes, and helical curves. So these are the various curves which are used in engineering applications or engineering objects, and is from your syllabus part. We have conic section curves, involute curves, cycloidal curves, spiral curves. These two are not the part of your syllabus, but these curves are also used. So these conic section curves are further classified as conic section curves. So these are classified as ellipse, parabola, hyperbola, ellipse, parabola, and hyperbola. And involute curves involute of a circle and involute of polygon. Cycloidal curves are further classified as, types of cycloidal curves are cycloid, apicycloid, and hypocycloid. Spiral curves, we have logarithmic, spiral, and Archimedean spiral. जो आपके सिलेबस के पार्ट हैं, कोनिक सेक्शन कर्व्स, साइक्लोइडल कर्व्स, इन्वॉल्यूट कर्व्स एंड स्पाइरल कर्व्स, और ये उनके फर्दर टाइप्स. सो कर्व्स जो हम यूज करते हैं डिफरेंट पर्पस है उसके. जैसे if we want to reflect light or reflect the sound waves, we use this conical curves. Parabola is there, and there are arches in the bridges. Bridge जो होते हैं, bridge की जो arches हैं या monument के भी arches होते हैं, तो they are elliptical forms, or any other form of arches are also there. Or there are some devices या कहें कि some elements whose profile consists of these curves, such as in gears. So gears are used to transmit power from one shaft to another. So the teeth of a gear profile, are of involute shape or the cycloidal curves. इन दोनों के जो फॉर्म है. और
In springs we use spiral springs are also there. So and also uh, in applications ki, such as this scale, these edges are curved. ये जो edges है longer, ये हम curve देते हैं. We provide some fillet, उसको हम fillet कहते हैं. The reason is कि to reduce the stress concentration factor, the stress in the sharp edges. If sharp edges is there, यहाँ पे sharp edges हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे stress concentration ज्यादा होगा. This is one thing. Another is कि इस तरह के applications को हम use करते हैं. तो if the edges are sharp, our hand may get damaged. ठीक है ना, हमें चोट लग सकती है इसके कारण. We get injured यदि हम इसको use करेंगे. तो edges को हम क्या करते हैं, यहाँ पे curve provide करते हैं. So these are the very applications, and there are also many other applications कि जैसे हमने बोला कि लाइट को रिफ्लेक्ट करना है या साउंड को रिफ्लेक्ट करना है, और ब्रिज का स्ट्रक्चर वहां पे अर्च देना है, या हमारा जो घर है हम वहां पे कोई अर्च प्रोवाइड करते हैं. सो दैट इज आल्सो अ कर्व, वो भी कर्व है. और वेरियस डिवाइसेस जैसे ये दिस माउस है, सो दिस माउस इज also a curve, इसमें भी कर्व है बना हुआ. This is a curve. So therefore we need to understand कि how the curve generate and how we can construct the curve on a drawing sheet. What are the different methods to construct the curves? ठीक है, तो वो जो methods हैं वो methods हम learn करेंगे कि उन curves को हम कैसे ड्राइंग शीट पर ड्रा करें, या अर्श हम बना रहे हैं तो उस अर्श पे वहां पर दीवार पे कैसे उसको बनाएंगे, उस कर्व को, उसके क्या मेथड्स हैं. सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर कंस्ट्रक्शन. तो हम इस अब हमारा जो टॉपिक है इंजीनियरिंग कर्व्स, इसमें हम इसके डिफरेंट कर्व्स क्या है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि कर्व कैसे जनरेट होगा, उसके क्या पैरामीटर्स होंगे, और उन पैरामीटर्स की हेल्प से हम कर्व को कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे. सो विल हैव डिफरेंट मेथड्स, हमें अलग अलग मेथड्स हैं इन कर्व्स को ड्रा करने के लिए. तो इस टॉपिक में हम यही सब लर्न करेंगे. ठीक है, सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि कोनिक सेक्शन कर्व्स क्या है. ये जो कोनिक सेक्शन कर्व्स हैं, ये कोनिक सेक्शन कर्व्स हैं क्या बेसिकली. सो किसकी हम बात करें कि हम कोनिक सेक्शन कर्व्स को कह रहे हैं कि इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला. मतलब कोनिक सेक्शन कर्व्स मींस कर्व्स obtained from a cone by sectioning it. ठीक है, if a cone is sectioned means if a cone is cut by a plane, we obtain different sections, therefore it's a conic section curves. So the sections are ellipse, parabola, hyperbola, और इस तरह से ये जो हमें मिलेंगे. So when a cone is cut, if this is a cone, ये cone है, और this is the axis of the cone, ये circular base इसका, these are the slant edges. If this is cut by a plane such that the plane is parallel to the base, this is the base, इस base के parallel है, और हमने इसको कट किया, तो यहां पर ये जो सेक्शन मिलेगा, that section, this section is a circle, ये हमें सर्कल मिलता है. So circle may also be called as a conic section curve. Another is if this cone is cut in by a plane which is inclined to the axis. Someone, एक मिनट. Okay. So if the cone is cut by a plane, ठीक है, which is inclined to the axis, axis से inclined है, and this is the angle, acute angle पे इसको कट कर रहे हैं. तो ये जो सेक्शन कट होगा, जब इस सेक्शन को आप व्यू करोगे ऊपर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो, सो इलिप्स आपको मिलता है, you get ellipse. And if the angle is increased, जैसे हम इस एंगल को इंक्रीज करेंगे,
यदि हमने इस एंगल को इंक्रीज किया कि सच दैट इस तरह से कट किया सच दैट कि द प्लेन इज पैरेलल टू वन ऑफ इट्स जनरेटर, एक जनरेट किसी भी जनरेटर को पैरेलल हो गया, इसे काटा या हमने ऐसे काटा, सो दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस और दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस, तो ये जो कट हुआ जहां से सेक्शन, वो जो शेप मिलेगा हमें, सो दैट इज नोन एज पैराबोला, तो हमें पैराबोला शेप दिखता है सेक्शन का। एंड इफ इट इज कट पैरेलल टू द एक्सिस, ये एक्सिस के पैरेलल, तो हमें हाइपरबोला सेक्शन मिलता है। और यदि हम इस कोण को एक ऐसे प्लेन से कट करें जो कि एक्सिस उस प्लेन में हो, मींस द प्लेन इज दिस, ये प्लेन है हमारा, ये प्लेन, और हमने इस कोण के दो टुकड़े कर दिए, मींस टू इक्वल हाफ्स, तो हमें विल गेट दिस सेक्शन, सो दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। So the curves are ellipse, hyperbola and parabola. These shapes are obtained from a cone. एक कोन को जब हम कट करते हैं तो ये शेप्स, इसलिए इनको कहते हैं हम कोनिक सेक्शन कर्व्स। This is the sections, but this conic section curves have some mathematical definition also. Mathematically, we can also define these curves. Can anyone tell me कि what is the definition? कोई बता सकता है? कौन सी कर्व की? जनरलाइज बात करें हम कोनिक सेक्शन कर्व्स। Sir, locus of a point satisfying given conditions. Locus of a point satisfying given conditions. चलो हम इसको ऐसा ले लेते हैं, है ना? मीन्स द कर्व्स की हम क्या बात करते हैं कि कर्व इज अ लोकस, लोकस मीन्स ट्रेस ऑफ अ पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट अभी यहाँ है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर, फिर इसकी नेक्स्ट लोकेशन ये, फिर इसकी नेक्स्ट लोकेशन ये, फिर इसकी नेक्स्ट लोकेशन ये जो ट्रेस है, ये इस ट्रेस को जब हम इन पॉइंट्स को जब हम इस को ज्वाइन करते हैं तो ये कर्व मिलता है, ठीक है? दिस इज नोन एज अ कर्व। सो दिस इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट, जो कि यहाँ से स्टार्ट होके इसकी पोजीशन फाइनली इट स्टॉप्स हियर, यहां से उसने स्टार्ट किया मूव करना और मूव होके यहां पर आ गया, ठीक है? इट्स सिंपल लोकस। तो अब लोकस है तो ये पॉइंट कहां पर, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में? दिस पॉइंट इज मूविंग, यदि फ्रीली मूव, यदि स्पेस में फ्री मूव कर रहा है तो इट में ड्रॉन अ कर्व लाइक दिस, 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 कुछ भी हो सकता है। सो इफ दिस पॉइंट मूव्स विथ सम कांस्टेंट, ठीक है, ये पॉइंट ऐसा फ्री मूव नहीं कर रहा है, ये तो फ्री तो ये मूव कर रहा है, बट दिस पॉइंट इज हैविंग सम कांस्टेंट, हमने इसके मूवमेंट पे कुछ कांस्टेंट लगा दिए, कुछ रोक लगा दी। किस तरह से रोक लगा दी कि द पॉइंट सेज कि आई वांट टू मूव इन अ स्पेस, सो वी सेड कि ओके यू आर फ्री टू मूव इन अ स्पेस, but you have to follow certain rules. So point says what rules? So the rule is number one way is कि you move in a space in such a way that you should be a fixed distance from a fixed point. This is a moving point. इसने कहा मुझे घूमना है स्पेस में, हमने कहा घूमो, बट आप घूमो स्पेस में, लेकिन एक बात की ध्यान रखो कि ये जो पॉइंट है एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से इस फिक्स्ड पॉइंट से तुमको इतनी डिस्टेंस पे मूव करना है, ठीक है? इतनी डिस्टेंस हमेशा मेंशन करना, आपको मेंटेन करके रखना आपको कि ये डिस्टेंस आपको चाहिए, इतने डिस्टेंस। आप इस पॉइंट के पास नहीं जाओगे और आप इस पॉइंट से इतने डिस्टेंस से दूर नहीं जाओगे, अब आप स्पेस में घूम लो। सो वी हैव पुट अ कांस्टेंट ऑन द मूवमेंट ऑफ दिस पॉइंट। तो अब पॉइंट क्या करेगा?
ये इस डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकता, ना ही इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है, बट ये इस तरह डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इट कैन मूव इन अ डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मींस इट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, इट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन, this distance is equal to this distance, this distance is equal to this distance, यहां पर गया इस पोजीशन पे देखें तो ये डिस्टेंस भी इसके बराबर, सो द पाथ इज सर्कल, तभी इसका पाथ क्या होगा, सर्कल, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस, दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस, ठीक है, दिस इज वन वे, एक कांस्टेंट इस तरह से दिया। नाउ अनदर कांस्टेंट पुट वाज कि ऐसा, ये कांस्टेंट हमने पुट नहीं किया बल्कि उसको बोला, वी सेड कि यू आर फ्री टू मूव दिस पॉइंट, दिस इज अ मूविंग पॉइंट, कि आप फ्री हो घूमने के लिए, बट एक हमने फिक्स्ड पॉइंट दिया, बोले ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और ये एक लाइन है, आप घूम सकते हो स्पेस में, घूम लो, कहीं भी घूम लो, लेकिन आपकी डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से और आपकी डिस्टेंस इस फिक्स्ड लाइन से, यदि ये एक्स है और ये वाई है, तो बोले आप इस तरह से मूव करो कि ये एक्स बाय बटा वाई का जो रेशो है ये किसी भी जगह पर सेम रहे, बोले आप इस तरह से मूव कर लो, ठीक है, इसको कहा फ्री घूमो आप, बट घूमो तो कांस्टेंट क्या पुट किया, कि कांस्टेंट ये पुट किया कि एक फिक्स पॉइंट है, उससे आपकी डिस्टेंस ये सेम होना चाहिए हमेशा, किसी भी पोजीशन में, आप यदि यहां पर भी आ जाते हो तो यहां से ये डिस्टेंस इसी के बराबर होना चाहिए, सॉरी हाँ, डिस्टेंस नहीं है, आपका डिस्टेंस का रेशो, मतलब आप यहां हो तो इस जगह पे ये डिस्टेंस इतना हो गया और इस फिक्स्ड लाइन से ये डिस्टेंस इतना हो गया, तो बोले ये जो x1 अपन y1 का जो रेशो हम लेंगे किसी भी मोमेंट पे, वो आपका xy के बराबर ही होना चाहिए, आप घूम लो, तो इस तरह से यदि इफ पॉइंट मूव्स, यदि इस तरह से मूव करता है तब वी हैव, इसके पास में ऑप्शन है, हो सकता है वो इस फिक्स्ड पॉइंट के नियरर घूमे, इस लाइन से दूर, दूसरा ऑप्शन कि ये पॉइंट इस लाइन के नजदीक रहे और पॉइंट से दूरी बना के रखे, हो सकता है ना, क्योंकि इसके दो, अब ये दो फ्रेंड है, दो फ्रेंड में से उसका जो एक क्या बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड बोलेगा यार पॉइंट से मेरी अच्छी बन रही है तो मैं इसके पास ही रहूं और लाइन से दूर रहूं, तो एक कर्व ट्रेस होगा। सिमिलरली हो सकता है पॉइंट की जो इक्वेशन है वो इस लाइन के साथ में अच्छी हो, तो इस लाइन के नजदीक रहे और इससे दूर रहे, तो एक कर्व ट्रेस होगा। हो सकता है कि ये मिड पाथ अपनाए, कैसे कि पॉइंट इस फिक्स पॉइंट से भी सेम दूरी और लाइन से भी सेम दूरी जो है वो बना के रखे दोनों से, बोले मैं दोनों को नाराज नहीं करता, इस तरह से मूव करे, तो ये जो रेशो है, क्योंकि वो कभी इस पॉइंट के नजदीक हो सकता है, कभी इस पॉइंट के नजदीक हो सकता है, कभी हो सकता है कि दोनों के बराबर हो, तो रेशो वेरी होगा, तो ये जो रेशो वेरी होगा, दिस रेशो 1 से कम भी हो सकता है, दिस रेशो 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, और ये रेशो 1 के बराबर भी हो सकता है, तो यहां पर इस रेशो को हम कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी, दिस इज नोन एज एक्सेंट्रिसिटी ऑफ कर्व, तो ये एक्सेंट्रिसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय E, so this is denoted by E. So this E is less than 1 for the case when point is nearer to X, this ratio is greater than 1 when point is nearer to Y, this ratio is equal to 1 when the point is having a equal distance from X and Y, from point fixed point and fixed line दोनों से equidistant हो, ये कर्व जब इस तरह से मूव करेगा कि ये रेशो 1 से कम रहे
तो ये बनाएगा कर्व इलिप्स। जब ये रेशो ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ये बनाएगा हाइपरबोला। और जब ये रेशो इक्वल टू 1 रहेगा तो वो जो कर्व ट्रेस होता है दैट इज नोन एज पैराबोला। So we have this ellipse, hyperbola, and parabola, and mathematically we represent this. There is mathematical relation also कि इन कर्व्स के लिए मैथमेटिकल रिलेशंस भी है। जैसे इलिप्स के लिए जो रिलेशन है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कर्व। सिमिलरली पैराबोला के लिए भी मैथमेटिकल रिलेशन है, हाइपरबोला के लिए भी एक मैथमेटिकल रिलेशन है। सो दैट इज द मैथमेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स। लेकिन यहां पर हम जो बात करेंगे विल टॉक अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ग्राफिकल। सो वी आर मेथड्स graphic to construct graphically the curves. So this is okay, eccentricity is okay, any doubt? कोई डाउट तो नहीं है इसमें आपको? eccentricity क्या है? No, sir. नो सर। नो सर। यार कि इलिप्स कैसे बनता है, हाइपरबोला कैसे बनता है, पैराबोला कैसा बनता है? क्योंकि आप लोगों ने मैथमेटिकली सॉल्व है, मैथमेटिकली आपने जो इलिप्स भी बनाया है, पैराबोला भी, हाइपरबोला भी आपने रिप्रेजेंट किया, और टेंजेंट भी बनाई है कि इलिप्स को टेंजेंट है या पैराबोला को टेंजेंट है या हाइपरबोला को टेंजेंट है लाइन, तो उसकी इक्वेशन भी आपने जनरेट की। बट हियर हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे, ठीक है। तो अब देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर दिस टर्म इज नोन एज द इलिप्स, है ना। अब इस फिक्स्ड पॉइंट को यहाँ पर वी कॉल इट, क्या कहते हैं इस फिक्स्ड पॉइंट को? फोकस। फोकस, ठीक है। सो दिस फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस। और इस लाइन को क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। दिस लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। सो वी हैव इलिप्स, one parameter, another parameter is focus, and another parameter is directrix. So we are aware with the 3 parameters. Then there are other parameters also for the case of ellipse, for the case of parabola, and for the case of hyperbola, ठीक है। वो हम बात करेंगे उसकी भी कि वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। So now what are the methods for the construction of conic section curves? तो ये जो conic section curves हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या मेथड्स है? मीन्स ellipse, parabola and hyperbola. Methods of conic section curves. Okay, so ellipse, parabola and hyperbola. Ellipse, parabola and hyperbola. So using this ellipse, eccentricity and focus and the directrix. So on the basis of this parameters, means eccentricity and focus and directrix, ये parameter हैं. So there is a method to draw ellipse, to draw a parabola, and to draw a hyperbola. So that method is known as general method. इसको हम कहते हैं general method. Means general method means using same method we can draw ellipse, we can draw parabola, and we can draw hyperbola. Okay, तो hyperbola भी बना सकते हैं, parabola भी बना सकते हैं और ellipse भी बना सकते हैं. Therefore this method is called general method. So this is a problem. Say if we have to construct an ellipse, this screen is visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So, we have to construct an ellipse, means ellipse banana hai, when the distance of the focus
from the directrix is equal to 50 mm and eccentricity is 2/3. So focus is there and distance from the directrix means directrix is also there and eccentricity. So 3 पैरामीटर है हमारे पास में. So क्या करेंगे हम इसको ड्रॉ करने के लिए कि फर्स्ट we will draw a line. Now the directrix जो है, the directrix may be a vertical line, the directrix may be a horizontal line, the directrix may be an inclined line. तो हम इस प्रॉब्लम में जो डायरेक्ट्रिक्स बनाएंगे वो हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल होगी या इंक्लाइन होगी. सो दैट डिपेंड्स ऑन द एक्सिस ऑफ द कर्व. तो इलिप्स की एक्सिस कौन सी वाली? सो इन इलिप्स वी हैव टू एक्सिस. ठीक है, वन इज द मेजर एक्सिस एंड अनदर वन इज माइनर एक्सिस. And major axis means when the curve the point follows the locus, उसका locus का जब हम draw करेंगे curve को तो it cuts the axis at the point. एक axis को एक point पे cut करता है. So that point is known as the vertex. So ऐसा वो दो जगह पे करता है. So that is the length of the axis, distance between the two points on the axis. ठीक है, जिसके ऊपर फिक्स पॉइंट लाई करता है. जो फिक्स पॉइंट है दैट फिक्स पॉइंट लाई ऑन द एक्सिस. तो वी आर एज्यूमिंग हियर कि द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज हॉरिजॉन्टल. वो हॉरिजॉन्टल है. सो डायरेक्ट्रिक्स क्या हुई? देन डायरेक्ट्रिक्स विल बी परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज अ वर्टिकल लाइन. तो डायरेक्ट्रिक्स हमारी वर्टिकल लाइन होगी. ठीक है, तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन मेथड वो ये है कि we will draw this directrix, means we will draw this line AB. हम ये AB line को draw कर लेंगे and then on AB we take a suitable point. हम इस AB पर कहीं भी एक point लेंगे C और इस C point से we will draw a horizontal line. एक ये horizontal line हम draw कर लेंगे, this horizontal line. So this is the axis of the ellipse. ये ellipse की axis होगी. परपेंडिकुलर, इन दोनों के एंगल क्या होगा? परपेंडिकुलर. ठीक है, देन वी मार्क अ पॉइंट F. यहां पर एक F पॉइंट मार्क करेंगे इस जगह पर एट दिस पॉइंट एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट F फ्रॉम दिस AB लाइन. इस AB लाइन से इसका जो डिस्टेंस है दैट विल बी 50. ये 50 mm रहेगा. So जो given information है, that given information is the fixed point is situated 50 mm away from the directrix. So focus is there and the directrix is there. And now the next one is eccentricity. So eccentricity is 2/3. Just try to अभी इसी से समझने की कोशिश करें. Then once the connections are resumed, कनेक्शन जब रिज्यूम होंगे तो हम उसको ड्राइंग शीट पर बनाएंगे. So please bear with me. So डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर ली, वर्टिकल लाइन. वहां पे सी पॉइंट हमने एक सिलेक्ट किया, सी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली. सो वी हैव द एक्सिस एंड वी हैव द डायरेक्ट्रिक्स एंड वी हैव द फोकस. हमने इस एक्सिस पर 50 mm दूर पे फोकस को मार्क कर लिया. देन नेक्स्ट इज वी हैव टू यूज दिस एक्सेंट्रिसिटी. एक्सेंट्रिसिटी को हमें यूज करना बिकॉज this is means 2 units of distance from the fixed point and this 3 means this is the 3 unit of distance from the fixed line, that is directrix. ये ऊपर वाला जो distance है ये हमें दे रहा है कि उस fixed point से उसकी distance को show कर रहा है और ये fixed point fixed line से उसकी distance को show कर रहा है moving point की. So the next one is कि from we will divide this distance CF. इस CF distance को will divide this CF distance into x plus y number of parts. ठीक है, so x plus y number of parts. This is our x, this is our y. So x plus y कितना हो गया here? It will be 5. So इस C से लेके ये F तक का जो डिस्टेंस है इसको हमें कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है?
x plus y, and here x is 2 and y is 3. So x plus y is कितना हो गया? That will be 5. तो हमें CF डिस्टेंस को 5 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, दिस इज ओके. यहां तक समझ में आया? हम लोग कनेक्टेड हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let me try in another way, huh? ओके, यहां से हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं ना. So this is our directrix AB, and this is our focus. And एक्सिस हो गई और ये हमारा फोकस हो गया है. दिस इज विजिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो डायरेक्ट्रिक्स बना ली. दिस इज AB लाइन A, and this is B. So this point is C. This point is A. Now, eccentricity. Okay. So eccentricity is given as x by y. X by y, that is equal to 2 by 3. So now we will divide this line segment CF into x plus y number of parts. So x is our 2, y is 3. So x plus y is 2 plus 3 equal to 5. So we'll divide this into x plus y, that is 5 number of equal parts. So CF के हम 5 equal divisions कर देते हैं. So this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4, and this is 5. So this is 1, 2, 3, 4, and ये 5. ये 5 equal parts हो गए इसके. Now we know that there is a point on the axis. Axis पे भी हमने बात की थी ना कि एक point होता है vertex. So vertex जो होता है, vertex जो point. Now how to locate the vertex? इस एक्सिस पर CF वाली जो लाइन है, इस पर हमें वर्टेक्स को लाई करना है. तो वर्टेक्स इज अ पॉइंट ऑफ इलिप्स. वर्टेक्स इलिप्स का पॉइंट है. तो वर्टेक्स इलिप्स का पॉइंट, इट मींस कि वो जो वर्टेक्स है वो इस रेशो को फॉलो कर रहा है. ये इस रेशो को वो फॉलो कर रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ? द वर्टेक्स शुड लाई 2 units of distance from fixed point and 3 units of distance from fixed line. So यहां से देखते हैं हम, दिस F is our fixed point. ये जो F है ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है. So इससे 2 unit of distance पे. So this is 1 unit of distance and this is 2nd unit of distance. So ये वाला जो पॉइंट है, this point is V. ये V पॉइंट होगा हमारा. This is okay? ये समझ में आया? V पॉइंट, लोकेशन ऑफ V पॉइंट. Yes, sir. Yes, sir. So ये V लोकेट हो गया. So it means if V is a point of ellipse, वेरीफाई भी कर लेते हैं इसको कि V इलिप्स का पॉइंट है या नहीं. If V is a point of ellipse, then उसके जो डिस्टेंस का रेशियो है फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से 2/3 आना चाहिए. So let's verify this. So this V
is situated 2 unit from fixed point, that is focus, and 3 units from fixed line. तो ये रही हमारी fixed line. So this is 1 unit of distance. This is another second unit of distance, and this is third unit of distance from the fixed line. हो गया क्या? ये एक division है. This is one part. This is second part, and this is third part. So V is situated 2 units of distance from the fixed point and 3 unit of distance from the fixed line. So V is a point of ellipse. ये ellipse का point हो गया. So we have located this point V. ये हमने V point locate कर लिया है. ठीक है. अब क्या करना है? और भी ऐसे points हमें generate करना है. We have to generate more number of points using the same principle. इसी principle से हमें और points यहाँ space में हम generate कर लेंगे, और उन points को जब हम join करेंगे तो हमें जो है वो ellipse मिल जाएगा. तो कैसे generate करेंगे? So for that हमें कुछ construction और करना पड़ेगा. किस तरह के construction? कि from this point V से we'll draw a line. इस V से हम line draw करेंगे और इस line पर एक point mark करेंगे. Say that point is E. That point is E, such that VE is equal to VF. V is equal to VF. इस तरह से एक पॉइंट हमने यहां पर E मार्क करेंगे. ठीक है. इट मींस क्या हुआ कि ये जो कर्व की एक्सेंट्रिसिटी है 2/3, सो दिस एक्सेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू कितना हो गया? VF अपॉन CV इज इक्वल टू VE अपॉन CV. VE अपॉन CV. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कि वी हैव टू join C with E. C को C से E को जोड़ना है और इस लाइन को आगे एक्सटेंड करना है. ठीक है. मींस C को E से जोड़ना है और इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देना है. सो नाउ वी हैव अ ट्रायंगल. तब हमें एक ट्रायंगल मिलेगा. कौन सा ट्रायंगल मिलेगा? ट्रायंगल CVE. ट्रायंगल CVE, ये ट्रायंगल मिलेगा हमें. अब इस ट्रायंगल में क्या खासियत है कि द रेशो ऑफ इट्स 2 साइड्स. इस ट्रायंगल की खासियत ये है कि इस ट्रायंगल की 2 साइड्स का रेशो वो एक्सेंट्रिसिटी के बराबर है. ए बराबर कौन सी 2 साइड्स हैं? कैन एनीवन टेल मी कौन सी 2 साइड्स हैं? VC by VE. VC by VE नहीं बेटा, VE by CV. Because this VE is VF. ठीक है ना? VE is equal to VF है. And VF is what? VF is distance of moving point from fixed point. That is focus. Focus से distance. और CV क्या है? Distance of a point from directrix, fixed line, directrix से. तो ये रेशो एक्सेंट्रिसिटी होगा. इसका इनवर्स नहीं होगा ना. ठीक है. सो Yes, sir. इस ट्रायंगल की 2 साइड्स का रेशो हमें एक्सेंट्रिसिटी देगा. So the point here is if we have such triangles, ऐसे और भी ट्रायंगल्स यदि हमें मिल जाएं तो हमें और भी डिस्टेंसेस ऐसी मिलेंगी जिनका रेशो 2/3 होगा. सो अब हम क्या करेंगे? द नेक्स्ट स्टेप इज कि इस VF लाइन पर, VF जो लाइन है मतलब जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे हम नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लेंगे. इस एक्सिस पे हम नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लेंगे.
say this is 1 2 3 4 5 6 7 8 etc. ऐसे पॉइंट्स ले लेंगे हम, और इन सभी पॉइंट से, सो दिस पॉइंट इज this point is 1, this point is 2, this point is 3, this point is 4, this is 5, this is 6, this is 7 and this is 8. ये पॉइंट हो गया। तो इन 1 2 3 4 5 6 7 ये डिस्टेंस जो है 1 से 2 का या 2 से 3 का या 4 से 3 का, दे मे बी इक्वल और दे मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, वो हो सकता है इक्वल भी हो नहीं भी हो, कन्वीनियंट पॉइंट वी हैव टू टेक। देन फ्रॉम दिस पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एटसेट्रा, ये जितने भी पॉइंट्स है, इन सभी पॉइंट से हमें डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल लाइन बनानी है, दैट इज इस तरह से। इस तरह से। तो ये जो लाइंस हैं फ्रॉम दिस पॉइंट 1 2 3 4 जिन पॉइंट से बनी है, इन लाइंस ने क्या किया, इन लाइंस ने जो सीई प्रोड्यूस्ड लाइन थी, सीई प्रोड्यूस्ड लाइन को यहां पर कट किया, 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 यहां कट किया, यहां कट किया और यहां कट किया। एंड दिस पॉइंट्स आर, दिस पॉइंट्स आर, दिस पॉइंट से दिस इज 1 डैश, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है ये हो गया 2 डैश, उससे नेक्स्ट वाला पॉइंट हो गया 3 डैश, उससे नेक्स्ट वाला पॉइंट हो गया 4 डैश, उससे नेक्स्ट वाला पॉइंट हो गया 5 डैश, इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट हो गया 6 डैश, देन 7 डैश एंड देन 8 डैश एटसेट्रा। तो इस तरह से हमें जो पॉइंट्स मिल गए सी प्रोड्यूस्ड पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। यहां तक कोई डिफिकल्टी समझ में नहीं आया हो? एनीवन, किसी को भी समझ में नहीं आया हो? सर ये आपने कट्स कहाँ से लगाए थे एक बार बता दो, ये जो लाइन पर 1 डैश 2 डैश। देखो हमने क्या किया, इस एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स लिए, ये समझ में आया? हाँ सर। फिर इन पॉइंट से क्या किया हमने, 1 से हमने एक लाइन ड्रॉ की डायरेक्ट AB के पैरेलल। ठीक है, इस AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। सो दिस लाइन B से जो लाइन बनी है ये वाली, ये वाली लाइन, ये लाइन AB के पैरेलल है और 1 पॉइंट से बनी है। सिमिलरली ये वाली जो नेक्स्ट लाइन है, ये लाइन 2 नंबर ऑफ पॉइंट्स, जो एक्सिस पर सेकंड नंबर का पॉइंट है 2, उससे बनाई है। ये 3 से बनाई है, ये 4 से, ये 5 से, 6 से, 7 से और ये 8 नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइन AB के डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल लाइन से। ठीक है, तो इन लाइंस ने ये जो CE प्रोड्यूस्ड है हमारी, ये जो CE लाइन है, इस CE लाइन को प्रोड्यूस किया हमने यहाँ पर। तो प्रोड्यूस करने के बाद में दोनों लाइन का इंटरसेक्शन हुआ, 1 से जो लाइन जा रही है और ये CE लाइन को आगे एक्सटेंड किया, तो ये लाइन ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर मिल रही है। सो दैट पॉइंट इज 1 डैश, उस पॉइंट को हम 1 डैश बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो 1 डैश है, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ CE प्रोड्यूस्ड एंड 1 लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 1, जो 1 नंबर से हमने पॉइंट यहां से ड्रॉ किया है वो। सिमिलरली जो 2 डैश पॉइंट होगा, वो 2 डैश पॉइंट भी क्या है, ये 2 डैश पॉइंट इस 2 से जो लाइन बनी है इसका
और ये सीई प्रोड्यूस्ड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसी तरह से हमने 3 डैश ऑब्टेन किया, 4 डैश ऑब्टेन किया, 5 डैश किया, 6 डैश किया, 7 डैश किया। समझ में आया? हाँ सर। नहीं आया तो प्लीज और बोल दें कि अभी भी समझ में नहीं आया। बट इफ इट इज समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े? समझ में आया? सर। ठीक है। अब क्या हुआ? नाउ जब ये कंस्ट्रक्शन हमने किया तो वी हैव नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। वन ट्रायंगल इज दिस ट्रायंगल C, 1 dash. Another triangle is C, 2 dash. The next triangle is C, 3 dash, and so on. C, 8 dash. ठीक है, दिख रहे हैं नंबर ऑफ ट्रायंगल्स? जैसे C 1 और 1 डैश, कौन सा ट्रायंगल हुआ? दिस इज C1, ठीक है, और ये 1 डैश, दिस ट्रायंगल, ठीक है। सो ऐसे C2 डैश ट्रायंगल है, C3 डैश ट्रायंगल है, C4 डैश ट्रायंगल है, C5 डैश ट्रायंगल है, C6 डैश ट्रायंगल है, C7 डैश ट्रायंगल है, C8 डैश ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल्स किस तरह से? कैन यू रिलेट कि जो CVE ट्रायंगल है और C1 डैश ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल्स किस तरह से? So triangle C1 dash is similar to triangle CVE. Triangle C2 dash is similar to triangle CVE. C3 dash triangle is similar to triangle CVE. Means these are the similar triangles. और यदि ये similar triangles हैं तो it means क्या हुआ? इनकी sides का रेशो सेम रहेगा. It means कि ट्रायंगल C1 में साइड्स का रेशो, कौन सी साइड्स का रेशो? 1 डैश अपॉन C1 इज इक्वल टू 2 डैश अपॉन C2 is equal to 3 dash upon C3 is equal to 4 dash upon C4, that is equal to VE upon CV, that is equal to VF upon CV, and that is equal to 2/3. ठीक है। सो इन दिस वे हमें और भी डिस्टेंसेस मिल गई जिनका रेशो 2/3 होता है। जैसे इस ट्रायंगल में ये 2 डैश अपॉन C2 या 1 डैश अपॉन C1, तो ये 2/3 के बराबर है। तो हमें पॉइंट कैसे ऑब्टेन करना है? नाउ टेक 1 डैश एज ए रेडियस। 1 डैश के बराबर हमें रेडियस लेना है, ठीक है। नाउ रेडियस इज इक्वल टू 1 डैश, ये 1 डैश के बराबर रेडियस लेना है, और सेंटर लेना है F को, इसको F को सेंटर लेकर,
वी हैव टू ड्रा अ अर्क, एक अर्क बनाना है, और वो अर्क इस वन डैश लाइन को 2 पॉइंट्स पर कट करेगा, एक ऊपर और एक नीचे, 8 पॉइंट P1 एंड P1 डैश। ठीक है, ये ऊपर वाला पॉइंट हो गया हमारा P1 और नीचे वाला पॉइंट हो गया P1 डैश। ठीक है, सो P1 एंड P1 डैश आर द पॉइंट्स ऑफ इलिप्स, ये इलिप्स के पॉइंट है। ठीक है, ये इलिप्स के पॉइंट है। अब ये इलिप्स का पॉइंट कैसे, P1 और P1 डैश, कैन एनीवन टेल मी कि P1 और P1 डैश जो है ये इलिप्स के पॉइंट है? यस, एनीवन कैन टेल मी, कोई बता सकता है क्या? सर यहाँ से एलिप्स पास होगा ना, वर्टेक्स वी रहेगा, फिर यहाँ से वर्टेक्स, वर्टेक्स वी मतलब वी जो पॉइंट है वो इलिप्स का एक पॉइंट है, उसके अलावा P1 पॉइंट और P1 डैश पॉइंट ये भी इलिप्स के पॉइंट है। तो इज इट ट्रू? जो पॉइंट हमने P1 और P1 डैश मार्क किया ना, हम उसकी बात कर रहे हैं कि ये पॉइंट भी इलिप्स के हैं। है क्या इलिप्स के पॉइंट? नहीं सर। नहीं है? अच्छा, चेक करें कि ये पॉइंट्स इलिप्स के हैं या नहीं। कंडीशन क्या होना चाहिए कि P1 की फोकस से दूरी डिवाइडेड बाय P1 की डायरेक्ट्रिक्स से दूरी, ये कितना आना चाहिए? 2/3 आना चाहिए। 2/3। ठीक है, यदि ये 2/3 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि P1 इलिप्स का पॉइंट है, और अगर ये 2/3 नहीं है तो ये इलिप्स का पॉइंट नहीं है। चेक करें क्या? यस सर। बिफोर वी चेक, जस्ट टेल मी कि ये जो P1 पॉइंट और P1 डैश हमने मार्क किया, ये समझ में आया कि नहीं? हाँ सर आ गया ये तो। ठीक है, सभी को आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि ये पॉइंट कैसे आया? सर कैसा है? नो सर। सर एक बार फिर बता दो ना। एक बार फिर बता दूं? ठीक है, एक बार फिर बता दूं। ठीक है, तो हमने क्या किया था, डायरेक्ट्रिक्स बनाई थी और एक्सिस बनाई थी। ठीक है, डार्क बन गया। This was our directrix, this was our axis, और हमने इसके ऊपर पॉइंट मार्क किया था एक, ये फोकस। ठीक है, एफ पॉइंट। फिर हमने एक उसके बाद में क्या किया था, CF को डिवाइड किया था 5 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4 और 5, और यहां से सेकेंड पॉइंट को हमने बोला था V, और इस V से हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, इस लाइन, और इस लाइन पर एक पॉइंट मार्क किया था इतना बड़ा, इतना इसके बराबर का, इक्वल टू जिस पॉइंट को हमने बोला था E। देन हमने C से V को
ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये ट्रायंगल मिल गया था, यहां तक क्लियर था ना। VE अपॉन CV इज इक्वल टू 2/3 ये था। सो VE अपॉन CV इज इक्वल टू 2/3 एक्सेंट्रिसिटी, जो कि इस ट्रायंगल की दो साइड्स का रेशो, ये वाली डिवाइडेड बाय दिस। तो ऐसे हम ट्रायंगल्स और बनाना चाह रहे थे, तो उसके लिए हमने क्या किया था कि V पॉइंट्स से के पास में से हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स लिए थे, जैसे 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से। दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3, ये पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 5, ये पॉइंट नंबर 6 और ये पॉइंट नंबर 7। देन फ्रॉम दिस पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा हमने यहां से लाइंस ड्रॉ की थी। सो ये लाइन हमने ड्रॉ की थी यहां से, दैट इज पैरेलल टू AB, इस डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल लाइन। फिर पॉइंट नंबर 2 से भी हमने ड्रॉ किया ऐसे ही, और ऐसे ही हमने पॉइंट नंबर 3 से ड्रॉ किया, पॉइंट नंबर 3 से लाइन। सिमिलरली पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 4 से लाइन। सिमिलरली पॉइंट नंबर 5 से, ये पॉइंट नंबर 5 से, इसी तरह से पॉइंट नंबर 6 से भी लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो ये हमारी लाइन है पॉइंट नंबर 1 से, ये लाइन है 2 से, ये 3 से, ये 4 से, ये 5 से, ये 6 से। दिस इज क्लियर टू। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, 4 डैश और ये 5 डैश, ये वाला पॉइंट लास्ट वाला 6 डैश, ठीक है। ये पॉइंट्स मिल गए। तो ऑब्जर्व, हमें और ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, हमें और ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। जैसे ये पहला ट्रायंगल था हमारा CVE, अब ट्रायंगल है हमारा C1, 1 डैश, फिर दूसरा ट्रायंगल है C2, 2 डैश, देन C3, 3 डैश, देन C4, 4 डैश, C5 और ये 5 डैश। ये सभी ट्रायंगल्स किस तरह से हैं कि दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स, CVE, C1, 1 डैश, C2, 2 डैश, दीज आर द सिमिलर ट्रायंगल्स। तो सिमिलर ट्रायंगल से इट मींस कि उनकी साइड्स का रेशो भी सेम हुआ, तो उनके साइड्स 1, 1 डैश डिवाइडेड बाय C1 is equal to 2, 2 dash divided by C2 is equal to 4, 4 dash divided by C4 and so on, and that is equal to, sorry, C4, and that is equal to VE upon CV, and that is equal to VF upon CV, और this is equal to 2/3, ठीक है। ये 2/3 हो गया। सर ये जो लाइंस के जो डिस्टेंसेस थे, ये कुछ मेजर करके लिए था आपने? कौन सी लाइंस? जो ये 3 से B है, C से 1 है, C से 2 है, इनको कुछ मेजर C से 1 के डिस्टेंस में ये हमने V पॉइंट है, V पॉइंट के बाद इस तरफ लाइंस ले ली हैं, सो दिस डिस्टेंस इज आर्बिट्ररी।
जैसे हमने ये v के बाद में जो 0.1 लिया था, ये आर्बिट्ररी मार्क किया, इसे इसके बाद में 2 पॉइंट भी आर्बिट्ररी मार्क किया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम v से एक पॉइंट एट सम डिस्टेंस पे हमने ये पॉइंट मार्क किया 1, तो उतनी ही डिस्टेंस पे हम 1 से 2 पॉइंट भी मार्क कर सकते हैं, और 2 वाली लाइन से 3, जो 3 पॉइंट हम मार्क करेंगे 2 और 3 का डिस्टेंस भी बराबर हो, 3 और 4 का भी डिस्टेंस, ऐसा भी कर सकते हैं। और अनइक्वल डिस्टेंस में आल्सो भी देयर, ये जैसे अनइक्वल डिस्टेंस ये भी चलेगा, नो इशू। ठीक है, द ओनली थिंग ये सी से वी का भी डिस्टेंस कुछ मतलब सी से वी का तो मतलब मेजर किया होगा ना? सी से ये वी, ये हाँ भाई सी से वी का डिस्टेंस तो हमने जब पॉइंट वी को मार्क किया था तब हमें मिल गया ना भाई। वी क्या एलिप्स का पॉइंट है, तो इसका सी से डिस्टेंस, दिस इज 1 यूनिट ऑफ डिस्टेंस, this is 2 unit of distance, and this is 3 unit of distance. Let us see distance 3 unit from fixed line and 2 unit from fixed point. So ये f, so this is 1 unit and this is 2 unit, so this ratio is 2/3. ये भी इस तरह से मार्क किया कि ये रेशो फॉलो कर रहा है। यस सर, ठीक है, ठीक, यस सर। हाँ। तो अब ये जो ठीक है यहाँ पे जो एंगल है उसको तो मेजर नहीं किया है ना? कौन से एंगल को? जो सी एंगल है यहाँ पे ई से जो बन रहा है। नहीं, एंगल नहीं, हमने तो इसको कंस्ट्रक्ट किया भाई, यहां से ये जो एंगल है, दिस एंगल इज सेम, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, दिस एंगल इज सेम, इसलिए तो सिमिलर ट्रायंगल है ना भाई। सी वी ई और सी 1 डैश, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर। हमने तो ये लाइन ड्रॉ की और इसके पैरेलल लाइन, इस डायरेक्ट से पैरेलल लाइन ये रही, तो एंगल से जो है वो ये सिमेट्रिकल है, सो इनके साइड्स का रेशो भी सेम होगा, दिस इज ठीक है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें जैसे ये वाला जो ट्रायंगल है सीवीई, इस ट्रायंगल में इस साइड को इस साइड से डिवाइड करते हैं, मतलब रेशो ऑफ दिस साइड टू दिस साइड वो एक्सेंट्रिसिटी के बराबर है। तो हमने ऐसे ही सिमिलर ट्रायंगल्स ऑब्टेन करने की कोशिश की, यहाँ पे ऐसे ही सिमिलर ट्रायंगल्स ऑब्टेन किए। तो C1 डैश इज ए सिमिलर ट्रायंगल टू CVE, ये सिमिलर है दोनों ट्रायंगल, ये और ये। यस सर, ठीक है, तो इसमें भी इनकी दो साइड्स का रेशो, मतलब कौन सी साइड, 1 डैश और C1, ये जो रेशो है ये VE अपॉन CV के बराबर है। सिमिलरली 2 डैश और C2, इन दोनों का रेशो वो भी VE और CV के रेशो के बराबर है, मतलब ये एक्सेंट्रिसिटी के रेशो। तो दीज आर द डिस्टेंसेस, ये 1 डैश डिस्टेंस है वो मूविंग पॉइंट की, कहां से, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, एंड दिस डिस्टेंस C to 1, ये C से लेके 1 तक की ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। ठीक है, एंड दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, बट फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है हमारा, द फिक्स्ड पॉइंट इज दिस F। तो हम क्या करेंगे, 1 और 1 डैश के बराबर का रेडियस, दिस 1 और 1 डैश के बराबर का रेडियस, ये रेडियस लेकर F को सेंटर लेके, है ना, F को सेंटर और इतना रेडियस हम दो अर्क मार्क करेंगे। कहां पे मार्क करेंगे, इस 1 से जो लाइन जा रही है इसके ऊपर। तो वी हैव दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट मिलेगा, दिस पॉइंट इज अ P1 एंड दिस पॉइंट इज अ P1 डैश। और अब हम ये कह रहे हैं कि ये P1 और P1 डैश इलिप्स के पॉइंट हैं, मतलब ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं जो कि इलिप्स के लिए है। कौन सी कंडीशन, कि इन पॉइंट्स का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशो सेम है। चेक करेंगे क्या, सेम है, देखो F से P1 का ये डिस्टेंस कितना है, F P1 अपॉन C1,
एफ पी वन कितना लिया है हमने, एफ पी वन, ये दिस इज द रेडियस, ये हमने रेडियस लिया, और रेडियस कितना लिया था हमने, वन डैश के बाद, तो एफ पी वन इज अपॉन सी वन इज इक्वल टू वन डैश अपॉन सी वन. नाउ वन डैश अपॉन सी वन इज इक्वल टू वीई अपॉन सीवी, that in turn is equal to VF upon CV, and that is equal to 2/3. तो इसका मतलब क्या हुआ, P1 जो है वो इलिप्स का पॉइंट है. आप P1 डैश को भी ऐसे ही चेक कर सकते हो. सो दिस इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है P1 का F से, और ये डिस्टेंस हमने कितना लिया है, ये डिस्टेंस वन डैश अपॉन ये डिस्टेंस हो गया वन डैश, और इसका यहां से डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस देखेंगे तो कितना होगा, C1, दिस इज C1, और ये कितना है 2/3. सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ इलिप्स. नेक्स्ट पॉइंट ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ विल टेक डिस्टेंस C, सॉरी डिस्टेंस हम लेंगे अब टू डैश, ठीक है. तो नेक्स्ट डिस्टेंस रेडियस विल बी टू डैश, और सेंटर क्या लेंगे F, और हम एक अर्क ऊपर बनाएंगे और एक अर्क नीचे बनाएंगे. किस लाइन पर बनाएंगे, टू वाली लाइन पे. तो हमें ये पॉइंट मिलेगा और एक पॉइंट ये मिलेगा. से दिस पॉइंट इज P2, और ये वाला पॉइंट हो गया P2 डैश. तो ये P2 और P2 डैश इलिप्स के पॉइंट है. जैसे हमने P1 और P1 डैश को प्रूव किया था कि वो इलिप्स के पॉइंट है, सिमिलरली P2 और P2 डैश भी इलिप्स के पॉइंट है इफ P2 का F से डिस्टेंस और P2 का C से डिस्टेंस का रेशो 2/3 हो. तो यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हैं कि F से P2 का डिस्टेंस ही है. ये डिस्टेंस हमने कितना लिया था, 2 डैश के बराबर लिया था, और इस पॉइंट का P2 का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ही रहा. This is the distance from directrix. So this distance is C2. So 2 dash upon C2. So 2 dash upon C2 is equal to 2/3 eccentricity. So P2 is a point of ellipse. Similarly, P2 dash is also point of ellipse. तो इस तरह से अब नेक्स्ट हम रेडियस क्या लेंगे, 3 डैश, सेंटर F को लेंगे और इसको दो आर्क बनाएंगे, एक ऊपर एक नीचे. फिर हम डिस्टेंस लेंगे 4 डैश, सेंटर हमारा F रहेगा, और हम इस 4 पे जो लाइन जा रही है उसी के ऊपर और नीचे कट करेंगे. सिमिलरली फॉर इसके लिए भी. और फिर जब हम इन पॉइंट्स को V के थ्रू ज्वाइन करते हुए ये जो कर्व ऑब्टेन होगा, दिस इज नोन एज इलिप्स. ये इलिप्स होगा, ठीक है. इतना समझ में आया या नहीं? यस सर. Yes, sir. कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया ना तो प्लीज बेझिझक पूछ लीजिए कि सर समझ में नहीं आया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आई विल एक्सप्लेन यू, मैं आपको तब तक समझाऊंगा. सर ये VF के बराबर कैसे हुआ सर, वो समझ में नहीं आया. क्या बेटा? सर ये VF के बराबर कैसे हुआ? VF के बराबर कैसे होगा? अच्छा यस सर. देखो हमने V पॉइंट मार्क किया, पहले पॉइंट CF मिला तो CF डिस्टेंस है. CF डिस्टेंस पे हमने पॉइंट V मार्क किया, दैट इज ओके. यस सर. ठीक है, तो V क्या है? V पॉइंट इलिप्स का पॉइंट है क्योंकि वर्टेक्स है.
यहाँ पे इलिप्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो वी इलिप्स का पॉइंट हुआ। फिर हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया था कि वी से एक लाइन ड्रॉ की थी पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, ये लाइन, और इस लाइन के ऊपर हमने पॉइंट ई मार्क किया था। किस तरह से मार्क किया था? कितने डिस्टेंस पे हो ये पॉइंट ई फ्रॉम वी? जितना डिस्टेंस वी का एफ से है, इतने डिस्टेंस पे। सर ये बात अपन ने एज्यूम की थी, ये अपन ने कंस्ट्रक्ट किया ना सर ये अपन ने माना था मतलब। हाँ माना है, मैं मतलब कंस्ट्रक्ट किया हमने सेम डिस्टेंस पे। अच्छा सर, ठीक है सर। ठीक है, ये ऐसा हमने क्यों किया? ठीक है, क्योंकि सर। हमें ये जो रेशो है 2/3, हम ऐसे डिस्टेंसेस ऑब्टेन करना चाहते हैं जिन डिस्टेंसेस का रेशो 2/3 हो। तो वन वे इज कि ये एक ट्रेंगल हमें मिलता। हमने ऐसा इसलिए किया कि सीवी तो एक लाइन तो ये हो गई, और ये लाइन बनाने से यहाँ पे एक ट्रेंगल मिलता, उस ट्रेंगल के दो साइड्स का रेशो एक्सेंट्रिसिटी हो रहा था, ये VE अपॉन CV। तो हम ऐसे सिमिलर ट्रेंगल्स और बना लेंगे तो हमें ये डिस्टेंसेस मिल जाएंगे जिनका रेशो 2/3 होगा, ताकि हम ये पॉइंट्स जनरेट कर सके, ये वाले पॉइंट्स इलिप्स के। इसलिए किया ऐसा। ठीक है? यस सर, यस सर। ये ठीक है। सो ये रहा V पॉइंट, दिस इज पॉइंट F, और यहां से ये हमने E पॉइंट ऑब्टेन किया था VF के बराबर, और ये लाइन ड्रॉ की थी, और फिर हमने ये पॉइंट 1 2 3 एटसेट्रा कंसिडर किए थे, और फिर हमने ये पॉइंट P1 डैश P2 डैश P3 डैश ऑब्टेन किए थे, और फिर इन पॉइंट से ये कर्व बनाया था इसमें इंक्लूडिंग V। तो जब हम ये और भी पॉइंट्स लेंगे इस तरफ 4 5 6 7, तो द कर्व विल क्लोज, यहाँ पे हमें क्लोज कर्व मिल जाएगा इन पॉइंट्स में। सो दिस इज योर इलिप्स, ये इलिप्स है, एंड दिस इज, ये एक वर्टेक्स एक पॉइंट है, ऐसे ही दूसरा पॉइंट ये भी मिलेगा V डैश, और एक फिक्स पॉइंट और मिलेगा इलिप्स में, दो फिक्स पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये और V से V डैश का जो डिस्टेंस है, ये मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, ये कहलाती मेजर एक्सिस। और इस मेजर एक्सिस के सेंटर से हम यदि डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल AB के पैरेलल लाइन बनाए, तो वो इसको इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कट करेगी। सो दैट इज योर माइनर एक्सिस, वो माइनर एक्सिस कहलाएगी। सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्ट इलिप्स using general method. Same method can be used to generate parabola and hyperbola. Difference क्या रहेगा उसमें कि पैराबोला में ये जो एक्सेंट्रिसिटी है, पैराबोला में एक्सेंट्रिसिटी 1 होती है। सो डिफरेंस कहां पे आएगा कर्व बनाने में, कि जो V पॉइंट है, ये V पॉइंट CF के सेंटर में लोकेट होगा। दिस V पॉइंट, ये जो V पॉइंट है, दिस V पॉइंट विल लोकेट एट द सेंटर ऑफ दिस डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन है, उसके सेंटर में V लोकेट होगा। हाइपरबोला भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो जैसे ये एक्सेंट्रिसिटी 2/3, लेट इट बी 3/2, यदि ये 3/2 हो जाए, तो पॉइंट विल नियरर टू द लाइन और फर्दर टू फोकस फिक्स पॉइंट। तो V जो है, V यहाँ पे मार्क होगा इस केस में 1 यूनिट एंड 2 यूनिट ऑफ डिस्टेंस यहाँ पर, और रेस्ट ऑफ द मेथड विल फॉलो, सेम मेथड फॉलो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ बोलो। पूछ रहा था सर, दूसरा फोकस कब डोमिनेट करेगा पहले फोकस से इलिप्स में, जब कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो पूरा इलिप्स? वो तो हम ये जब डिस्टेंसेस लेते जाएंगे ना, तो एक डिस्टेंस ऐसा हमें मिल जाएगा, ये जो कर्व है, ये जो पॉइंट है, पॉइंट की लोकेशंस हमें मिलती जाएंगी ऐसे,
फिर पॉइंट की लोकेशन इस तरह से मिलेगी कि एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सो इन देन वी कैन लोकेट दिस पॉइंट एफ, तब हम इस एफ को लोकेट कर सकते हैं। वंस वी इज लोकेटेड, ये जो वी मिल गया ना, तो ये वाला जो वी डैश मिलेगा, इस वी डैश मिलने के बाद में हम इस एफ डैश को लोकेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे ये जो वी पॉइंट है, इस वी से ये जो डिस्टेंस एफ का डिस्टेंस है वी एफ, तो हम क्या करेंगे, इस वी से वी एफ के बराबर यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे, तो वो हमें एफ डैश मिलेगा। ठीक है, तब लोकेट होगा। So that's all for today. Due to power failure, थोड़ा सा मुश्किल हुआ। I hope कि आपको समझ में तो आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब कनेक्ट करेंगे तो उसको ड्रॉ कर लेंगे शीट पर। सर हाँ बोलिए। सर ये पीडीएफ आपने शेयर करी हुई है ना? ये पीडीएफ पूरी नहीं शेयर की बेटा मैंने अभी, जितना जितना होता जाएगा ना मैं शेयर करता जाऊंगा। सर ये जो आज पढ़ाया था ये वाली शेयर की हुई है या अभी करोगे आप? अभी नहीं किया मैंने, ये इलिप्स वाला, ये इलिप्स वाला मैंने अभी शेयर नहीं किया। ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, और कोई किसी को कुछ क्वेश्चन डाउट हो? नो सर।